Hello students, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams, and welcome back to the Wednesday video. So ये जो video है, this was one of the requested videos regarding the preparation techniques जो मैंने last time बताया था. Revision techniques की video भी बहुत जल्दी channel पे आ जाएगी. But today I will be telling you few preparation techniques which definitely could be used by any student, CA, CS, CMA, single group, both groups. But why I stress more on like both groups and not on single group? See, for single group now, you only have four subjects, and by any means I feel that if you can go by plain short making short notes, that also helps and that also suffices, so that is not a big deal. But when we talk about both groups, because eight subjects, to be honest, are a lot, and when you go through them it takes a lot of time also. So if you use certain techniques, you can definitely reduce your time and increase your chances of clearing the attempt. So today I will be telling you five techniques. Of course, you can use it for single group also. So today I will be telling you five techniques for preparation, and while preparing for single group, for both groups, for CA, CS, CMA, anything, you can refer to them and they will help, right? The first technique that I have is called flashcards, right? Of course, they are time taking, they will take your time. Now, what do you mean by flashcard? Flashcard could simply be made with a paper, right? With a chart paper, with even a plain paper, you can take. On one side, you write the question, and on the other side, you write the answer. And what I mean by question and answer, for example, you are writing about women director. On one side, you will write what is, what women director, and on the other side, you will write all the information related to the women director or alternate director or independent director. You can just use it as it is, or you can simply take sheets like this. I remember जब हम छोटे होते थे तो स्टेशनरी से ऐसी शीट्स लाके हम लोग वो करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे. एंड ये गुंतात की है. रिसेंटली आई हैव यूज देम. तो जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, ये छोटी वाली शीट्स है, आप इनका हाफ कर सकते हो, आप इनके फोर पार्ट्स कर सकते हो. दैट इज completely on you. On one side you can write the question, and on the other side you can write the answer. This is how you can make your own flashcards. And flashcards could be made for the topics which are आई वुड से डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, या आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक्स टू द पॉइंट मुझे पता होने चाहिए, जैसे विमेन डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, उन सब के लिए ऐसे फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हो. चाहे इस तरीके के कलर शीट्स यूज कर लो, या सिंपली A4 शीट को काट लो, लाइक इसमें से स्क्वायर्स काट लो, एंड यू कैन मेक योर फ्लैश कार्ड्स. नाउ these flashcards will be very useful. जैसे मैंने आपको बताया कि जो टू द पॉइंट टॉपिक्स होते हैं, या आई वुड से शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनके लिए ये काफी यूजफुल होते हैं. आप एक साइड पे टॉपिक लिख सकते हो, वट एवर द टॉपिक इज, एंड दूसरे साइड पे आप पॉइंट्स में उसके आंसर लिख सकते हो. रिविजन के टाइम पे भी आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज अगेन आप इजीली इन्हें रेफर करोगे. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिकॉलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक तो जब आप लिखते हो, when you are writing a thing, you automatically retain a lot of things in your mind, and when you will revise, you will recall and you will revise it properly. तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हो. द सेकेंड टेक्निक is very simple but very effective. If I talk about from my point of view, the diagrams. Even मैं अपनी क्लास में भी कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी भी चीजें डायग्राम फॉर्म में या फ्लो चार्ट फॉर्म में बना सकूं उतनी मैं बना के दूं, बिकॉज आई नो दैट व्हेन यू सी द पैराग्राफ्स, व्हेन यू सी ओ माय गॉड हाउ मच आई हैव टू रिमेंबर, यू गेट थ्रेटन. बट व्हेन यू सी अ थिंग, ऐसे बनाया, ऐसे नीचे कुछ इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया 1 to 2 words में, लाइक दिस, द रिमेम्बरेंस इज ऑल्सो ईजी, एंड द रिकॉलिंग इज ऑल्सो ईजी. तो आप इस तरीके के डायग्राम्स बना के 2 to 3 पेजेस का जो मैटर है वो इस तरीके के डायग्राम में आप जो है लिख के रख सकते हो, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो. काफी सारी चीजें. तो इससे क्या होगा ना, आपने जब फर्स्ट रीड ली, when you're preparing, when you're reading for the first time, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा और इस तरीके से आपने फॉर्मुलेट कर लिए,
बॉक्सेस कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। मेजरली जैसे पेनल्टी होती है तो मैं पेनल्टी में फॉर्मुलेट करवा देती हूँ कि कंपनी की पेनल्टी कितनी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की पेनल्टी कितनी है, ठीक है। अगर फर्दर पेनल्टीज चल रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो इस तरीके से बना लो। लाइक दिस आई फॉर्मुलेट, और यू कैन फॉर्मुलेट समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। डायग्राम्स आर लाइक एनीथिंग, फ्लो चार्ट्स और एनीथिंग दैट यू थिंक कि मैं एक ही चीज में, एक ही जगह पे जो है बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हैं हम। दैट इज कॉल्ड डायग्राम्स एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल, ट्रस्ट मी। व्हेन वी मेक सच डायग्राम्स, राइट, कुछ किसी चीज की एक्सेप्शंस है, किसी चीज के पॉइंट्स है, लाइक यू कैन मेक सच डायग्राम्स ऑफ एनी टॉपिक, राइट। कोई भी टॉपिक है, आपको उसको डायग्राम फॉर्म में करना, सिंपल फ्लो चार्ट फॉर्म में कर लो। ऊपर वाले बॉक्स में लिख लो टॉपिक, राइट, दिस इज द टॉपिक, और इसके नीचे जो है आप बाइफरकेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। अगेन मैं आपको नहीं कह रही हूँ, इट इज इसके आगे भी आपको कोई चीज बाइफरकेट करनी है, आप इसके फर्दर बॉक्सेस बना सकते हो। सो लाइक दिस यू एक्चुअली I would say that you actually make so much of content on one page के रिविजन के टाइम पे बहुत आपको हेल्प हो जाएगी, और प्रेपरेशन करते साथ साथ आपको चीज ना समझ आने लग जाएगी। यू फील ओके, आई अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो उस तरीके से आपको काफी हेल्प रहती है इस टेक्निक से। The third technique that I will tell you is very, very effective. That is teach someone else. Right? Become a teacher. आप किसे टीच कर सकते हो अब, ऑब्वियसली मोस्टली द फर्स्ट चीज तो फ्रेंड्स ही आता है, ठीक है। फ्रेंड्स को टीच कर लिया, या अपने जो साथ वाले बच्चे हैं या अपने जूनियर्स है फॉर एग्जाम्पल, उन्हें कोई चीज बता दी, उन्हें टीच कर दिया। या अगर कोई नहीं है, if there's no one, then just pretend it, just pretend that you're teaching, right? अगर आपसे कोई भी नहीं पढ़ना चाहता कोई नहीं आपके पास, then just pretend it. But the best people are your friends, are your the friends, or I would say the people who are in the same level. कई बार कई लोग सोचते हैं कि अरे वाई टू हेल्प, राइट, हम क्यों हेल्प करें, बट यू डोंट नो हेल्पिंग एक्चुअली मेक्स योर नॉलेज बेटर। जो लोग ये सोचते हैं ना हम क्यों बताएं, हम अपनी नॉलेज को अपने पास रखेंगे, नहीं, जब आप किसी को बताते हो इट मेक्स यू बेटर, इट मेक्स यू फ्लुएंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो टीचिंग समवन एल्स ऑलवेज मेक्स यू बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब आप एक ही बात बार बार बोलते हो तो उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होती है। तो जितनी भी बार आप किसी को कोई चीज पढ़ाते हो, आपने प्रिपेयर किया, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा, आपने उसको भी समझाया, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तभी आपने देखा ना टीचर्स एक दो बार पढ़ाने के बाद उन्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बिकॉज जब आप पढ़ाते हो, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमारे दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो बच्चा पूछ लेता है, एंड देन यू हैव टू आंसर इट। अगर नहीं आता, यू रिविजिट द टॉपिक। तो इस तरीके से काफी जगह पे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपकी जो बेस है, वो काफी हद तक क्लियर हो जाता है, राइट। मूविंग टू द फोर्थ टेक्निक विच इज ब्लैंक पेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका बेस्ट ये है, आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने फर्स्ट रीड ले ली, नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अब मैं क्या करूं इसका, तो सिंपली आप ऐसा करो, आप एक ब्लैंक पेज ले लो, राइट, जस्ट लाइक आई वाज टेलिंग यू अबाउट फ्लैश कार्ड। आप एक ब्लैंक पेज ले लो और टॉपिक के बारे में जो जो समझ आया इसके ऊपर लिख लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें मुझे नोट डाउन करनी है, और क्या क्या चीजें लीस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज जब आपने एग्जाम देना है, हर चीज तो इंपॉर्टेंट होती नहीं है, राइट। यू जस्ट नीड द इंपॉर्टेंट थिंग्स, और आई कॉल देम द की वर्ड्स, राइट, द की टॉपिक्स, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप इस तरीके से, सपोज आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ लिया, एक A4 शीट उठा, और ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली टेक अ पेज ऑफ योर रफ नोटबुक और योर सिंपल रजिस्टर, उसके ऊपर जो है आप लिख लो सारा कुछ उस टॉपिक के बारे में, एंड देन एनालाइज दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट और व्हाट इज लेफ्ट इवन, ठीक है। फिर मैच करो कि क्या क्या चीजें मैंने एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट थी वो लिख ली है, और क्या क्या चीजें रह गई हैं, और फिर आप उसे रिविजिट करके एक्चुअली अपने अच्छे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फर्दर इसके बाद आप डायग्राम्स भी बना सकते हो। इट इज कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन ये टेक्निक भी काफी हेल्प करती है क्विक प्रेपरेशन में। क्या होता है, कई बार बच्चे एक ही टॉपिक को लेके दो दो दिन बैठे रहते हैं कि अरे लर्न नहीं हो रहा, लर्न नहीं हो रहा। फटाफट फर्स्ट रीड लो, उसे थोड़ा सा समझो, एक ब्लैंक पेपर उठाओ, अपनी नोटबुक खोलो, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो कि आपको क्या समझ आया। यू वुड अंडरस्टैंड कि आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज 2 ग्रुप्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, एंड यू नीड टू लर्न अ लॉट, राइट। इसके बाद आता है फिफ्थ
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी बच्चे नहीं करते, दैट इज मेक योर ओन टेस्ट। हम हमेशा ना दूसरे की तरफ देखते हैं, दूसरा टेस्ट सीरीज रेफर कर दो, अपने टीचर्स को कहते हैं कि हमारे टेस्ट लो। व्हाई कांट वी मेक आवर ओन टेस्ट? वी कैन मेक आवर ओन टेस्ट। आपके पास स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास गाइडलाइन आंसर्स हैं, लाइक टू जस्ट चेक व्हाट इज द आंसर। आपके पास आई वुड से nowadays you have reference books also, right? Study material में आपके पास questions होते हैं, then why can't you formulate your own test? Is it that difficult? चैप्टर खत्म करके, स्पेशली जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं भी करते, अलग से लेक्चर्स खरीदने, फिर अलग से टेस्ट सीरीज खरीदनी, और विच इज गुड, ठीक है, अगर आप वैसे इंटरेस्टेड हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लेवल पे अपने एंड पे भी प्रेपरेशन करते टाइम आप अपनी नॉलेज को इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो। एंड यू नीड नॉट फील द प्रेशर ऑफ इट। अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज नहीं आ रही उसे फिर से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, बल्कि इन सारी टेक्निक से आपको ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, राइट? एज इन हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड एंड हाउ मच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट आर दोस पर्टिकुलर टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, राइट? तो ये बहुत ही बेसिक 5 टेक्निक्स मैंने आपको बताई, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, राइट? एज इन कि आपको समझ नहीं आएगा। दे आर वेरी वेरी बेसिक, वेरी सिंपल 5 टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर योर सिंगल ग्रुप और योर बोथ ग्रुप्स, राइट? तो ये दोनों चीजों का आपने ध्यान रखना है। सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। बोथ ग्रुप्स के लिए मैं बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स लगाओ। इसके अलावा चैनल पे मैंने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया हुआ है, 20-80 टेक्निक के बारे में भी बताया हुआ है, तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। बट द मेन एम इज दैट बोथ ग्रुप्स में मैं ये चाहती हूँ कि प्रेपरेशन के टाइम पे आपकी स्पीड बनी रहे, ताकि आप रिविजन तक पहुंच सको, राइट? ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है, इन्हें फॉलो, और ऐसा नहीं है कि एक ही फॉलो करनी है। डोंट थिंक लाइक दैट। आप इनका मिक्स एंड मैच कर सकते हो, एक फॉलो कर ली, दूसरे फॉलो कर ली, एक सब्जेक्ट के लिए एक तरीके से कर लिया, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे तरीके से कर लिया, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन ये बहुत ही बेसिक टेक्निक्स है, इनसे आप क्विक अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की हो, एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद मोर रिविजन टेक्निक्स ऑल्सो, जिससे आप जो है अच्छे से और क्विकली रिवीजन कर पाओ सिंगल और बोथ ग्रुप्स की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैव नॉट डन इट येट, बिकॉज इट्स टोटली फ्री, एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, so that whenever I upload any video you get notified. I'll see you soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.